Good evening, children. Good evening, everyone. Okay, so last time we had, yes, we already have started up with the chapter, your first chapter of economics, people as a, uh, story of village Palampur, not people as a resource, that will be starting later. So we have already started up with the chapter. Good evening, everyone. Story of village Palampur. Now let's have a quick recap of what we did last time, and then we'll start up with the fresh topic today. So what we did last time, that Palampur is an imaginary village, and it is uh, a very modernized village, right? It has all the basic facilities like electricity is there, the other facilities like good roads, transportation system, some good houses. There are in total 450 families living there, out of which the upper caste people have got good houses, pakka houses, the houses built with cement, and the others, the low caste people are living in, which are almost 80 families. They are living in, straw and mud houses. The other factors in that village, they are quite favorable to people living there. The village is, as I have already told you, is quite modernized, as it has got well connected roads. The neighboring villages are also imaginary villages. They are hypothetical villages. The first village, which is there is one town which is a neighboring town. Shahpur is a neighboring town, and one neighboring village is also there, Raiganj. So Raiganj is the neighboring big village, and Shahpur is its neighboring town, and the roads are well connected with them. Also, there is good transportation system, electricity, tube wells. There are 3 schools in village Palampur, 2 primary and 1 high school. ठीक है, तो इस पूरे सिनेरियो से हमें पता चलता है that the village is quite a modern village there. I am revising, Rajni Sharma. I am revising whatever we did last time, and please pay attention. Okay, so this description shows that the Palampur village has fairly well developed system of things over there, right? The activities, the major activities which are done in people, as you know that in rural area, almost all rural areas in India have got one major activity. क्या काम करते हैं वो, ठीक है? The major activity in village Palampur is also, what can it be? Agriculture. Agriculture is the major activity there. Along with agriculture, people also perform other activities like shopkeeping, crafts, and other things, right? So this is the whole. Now we also learned about the major thing we learned the other day were the factors of production. Now, what are the different factors of production? Can any one of you write, give me in writing the various factors of production? Only the names. कौन कौन से factors? Factors of production क्या है? वो चीजें जो हमें production में help करती हैं. कोई भी चीज produce करने में क्या क्या basic चीजें जो हैं वो हमें चाहिए. So what are the basic things required? Can any one of you tell me what are the factors of production? There are majorly 4: land, labor, capital, land, labor, physical capital, very good, and human capital, very well done. So there are majorly 4 factors of production. One is land, then it is labor, then it is physical capital, and finally it is human capital.
Land, labor, physical capital, and human capital. Now, can anyone tell me, physical capital is also divided into two parts. What are these? Physical capital has also been divided into two parts. What are they? Very good one. Fixed capital and working capital. Working capital and fixed capital. ये चीजें मैं दोबारा आपको इसलिए करा रही हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, चाहे आप अभी पढ़ रहे हैं, चाहे आप +2 की लेवल पे पढ़ रहे हैं, चाहे आप कॉलेज लेवल पे पढ़ रहे हैं, चाहे PhD लेवल पे पढ़ रहे हैं, ये चार चीजें हमेशा हमेशा इकोनॉमिक्स में यूज होगी. द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो आप लोग, जब मैं ये समझा रही हूँ ना, किसी को अभी भी कुछ भी डाउट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, आप मुझे अभी पूछिए. ठीक है, और when I finish up with this topic, never ever you are going to forget about these 4 factors of production, right? So let us revise them again. What is the first factor of production? Land. Land means the land required to, you know, build a factory. The land required where a factory is built, where the machinery is going to be put, that land is the first thing which is required for production of anything. किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमें लैंड की जरूरत पड़ती है, जमीन जिस पे काम होगा. The second factor of production is labor. Labor means वो लोग जो वो काम करेंगे. Now labor is further divided into skilled and unskilled. स्किल्ड लेबर है और अनस्किल्ड लेबर है. स्किल्ड लेबर होगी वो लेबर जिसको थोड़ी बहुत काम की पहचान होती है और उसमें स्किल होनी चाहिए वो काम करने की. और अनस्किल्ड होगी जो जिस चीज में, जैसे डब्बे पैक करने हैं, गत्ते के डब्बे जो होते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, कार्टन्स, उनको पैक करना है, तो उसके लिए कुछ ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं. स्किल्ड लेबर आ जाती है. सपोज कोई असेंबली लाइन, यू नो व्हाट इज असेंबली लाइन? असेंबली लाइन होती है जब फैक्ट्री में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही होती है, 1 by 1. जैसे पहले बोतल बनेगी, बोतल के बाद बोतल में फिल होगा पानी के फिल होने के बाद उस पर ढक्कन लगेगा, ढक्कन लगने के बाद उसके ऊपर रैपर लगेगा. तो वो पूरा का पूरा काम एक लाइन में कौन कौन कर रहे हैं, स्टेप वाइज जो काम हो रहा होता है ना, उसे पूरी असेंबली लाइन कहते हैं. ठीक है, तो असेंबली लाइन में ज्यादातर जो लोग काम करते हैं वो थोड़ी स्किल्ड लेबर होती है. ठीक है, वो क्यों स्किल्ड होती है? क्योंकि उसमें कुछ एक्सपर्टीज चाहिए होती है. ठीक है, होती लेबर ही होती है, बट अ बिट स्किल्ड. एंड अनस्किल्ड लेबर होगी जो नॉर्मल, जैसे बाहर डेली वेजेस जो होते हैं, सड़क बनाने का काम है, जो घर में जो आप लगाते हो लेबरर्स जब आप घर बनाते हो, और ऐसी ही बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे काम जो अनस्किल्ड लेबर को करने होते हैं. सो जो जिसके लिए बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, एनीवन कैन डू एनी टाइम. आज अगर हमारे पास वो बंदा नहीं आया तो उसकी जगह हम कोई भी दूसरा बंदा बुला के वो काम करवा सकते हैं. स्किल्ड लेबर के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है. ठीक है, तो स्किल्ड और अनस्किल्ड 2 तरह की लेबर होती है. उसके बाद आ गई हमारी फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल हो गया वो चीज जो इनपुट चाहिए किसी चीज को बनाने के लिए. किसी चीज को बनाने के लिए the variety of inputs which are required at every stage during production. हमारे पास लैंड हो गया, ठीक है, लेबर आ गई. उसके बाद वो चीजें चाहिए जिससे कि हम प्रोडक्शन, कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे. वो क्या चीजें होगी? वो होगी टूल्स, मशीनरी, देन फाइनली द रॉ मटेरियल. यस, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी. इसमें फिक्स्ड कैपिटल वो होती है, 2 तरह की है इसमें, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. एज who just gave me the answer of fixed capital? Let me see. Vansh, very good Vansh. That working capital और fixed capital के बारे में वंश ने लिख दिया है that fixed capital are the things which are used for a long time. And working capital is the money in hand and raw material. Very, very good, Vansh. I could see that you have been studying hard. So what is
फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जो हम एक बार खरीद लें चीजें तो वो हमारे पास रहेंगी और हम उससे बार बार काम लेंगे और कहीं लॉन्ग टर्म तक काम लेंगे, जैसे मशीनरी और टूल्स। ठीक है, मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग। ठीक है, ये 3 चीजें मेजर होती हैं, फिक्स्ड कैपिटल में आती हैं। एक बार हमने फैक्ट्री की बिल्डिंग बना दी, ठीक है, तो रोज थोड़ी चेंज करेंगे, आज ये बिल्डिंग बनाओ, अरे नहीं कल दूसरी बिल्डिंग, कल डुप्लेक्स वाली बिल्डिंग बनाते हैं, अरे तोड़ो इसे, नेक्स्ट डे हम कुछ बड़ी हॉल वाली बिल्डिंग बनाते हैं। अरे ऐसे नहीं चलता है। वंस अ बिल्डिंग हैज बीन मेड तो उस बिल्डिंग को चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज मशीनरी। एक बार मशीनरी ले आए, ठीक है, मैंने अभी आपको बॉटलिंग का एग्जांपल दिया, कैसे वाटर बॉटल्स बनती हैं और पानी भरा जाता है, तो वो पूरी बॉटल बनाने की मशीनरी और पानी भरने की मशीनरी है, जो भी चाहिए उस जगह के लिए, वो एक बार अगर हम ले आए हैं तो नेक्स्ट टाइम हम रोज मशीनरी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी हम सेम मशीनरी से ही काम चलाएंगे, राइट। सो दिस इज how machinery is bought, and it remains a fixed capital. It is not changed every day. It remains there for a long time, unless and until it is broke off, or it broke off, or it becomes obsolete. Obsolete मतलब पुरानी हो गई है, नए जमाने से के साथ नहीं चल पा रही है, तो उसके फंक्शंस पुराने हो गए, तो उसे हटा दो और नई ले आओ। ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म तक मशीनरी रहती है, बहुत लॉन्ग टर्म तक मशीनरी रहती है, बिल्डिंग रहती है, और बहुत लॉन्ग टर्म तक हमारे पास टूल्स रहते हैं। टूल्स हो गए छोटे मोटे टूल्स जो मशीनरी ठीक करने के लिए चाहिए हमें, फैक्ट्री चलाने के लिए चाहिए हमें, इंडस्ट्री चलाने के लिए छोटे मोटे टूल्स की जरूरत पड़ती है, वो इट इज ऑल फिक्स्ड कैपिटल। समझ आ गया? इवन दी tools and machines, they range from very simple things such as generators, वो क्या कहते हैं, मोटर्स, वाटर पंप के लिए वाटर पंप्स जो होते हैं, वाटर पंप चाहिए होते हैं, ये भी मशीनरी में आता है। प्लोज हो गए, खेत चलाने के लिए जो हल चाहिए होता है। देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ हम इंडस्ट्रीज की बातें नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर की भी बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में भी सबसे पहले लैंड चाहिए होता है जिसपे खेती होगी। ठीक है, जब भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, डोंट एवर थिंक दैट इट इज ओनली फॉर द इंडस्ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट। नो, वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। फॉर दैट आल्सो वी रिक्वायर द सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके लिए भी हमें लैंड की जरूरत होती है, लैंड के बाद हमें लेबर की जरूरत होती है। ठीक है, okay Vaishnav, it was your social studies days. How was it? In which school are you in, Vaishnav? Okay, AF स्कूल में है आप। Okay, good. So how was your test in the school? Did it go well? Oh, it was difficult. Can you please send me one copy of your question paper so that I can, you might get my number from the group. I am there in the group, because tests are going to. All right, Arnav, I will be sending the notes to you. I have the notes with me. I have been sending the notes to class 10th. I don't know why I haven't sent them to you. I'll be sending it probably today or tomorrow. ठीक है, notes में भेज दूंगी. And Vaishnav, do send me the question paper on my personal number. You can get my number from the group. I am there in your group also. तो वहां से आप मेरा number ले लीजिए. I hope you all know my name.
Oh, so it was an online test. Okay. ऐसे ही हो रहा है बेटा, ऑनलाइन टेस्ट ही हो रहे हैं आजकल, स्कूल तो जाना नहीं है. बट क्वेश्चन पेपर नहीं मिला. ओके, सो लेट अस कम बैक. गूगल फॉर्म से हुआ है, ग्रेट. ओके वंश, आई हैव टोल्ड यू आई विल बी सेंडिंग द नोट्स. फर्स्ट चैप्टर आने होंगे आपके सारे. हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया पॉलिटिकल साइंस का. फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी की नोट्स तो मैंने भेज दिए आपको. आई हैव ऑलरेडी सेंट द ज्योग्राफी नोट्स. यस. तो अभी आई विल बी सेंडिंग पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स तो अभी हम कर रहे हैं. पॉलिटिकल साइंस के नोट्स आर रेडी विद मी, आई विल बी सेंडिंग देम. एंड इकोनॉमिक्स के नोट्स में चैप्टर कंप्लीट होने से पहले आपको भेज दो. Will that go? चलो let's see. आज क्या आप, let's stop talking now. Let us try to finish up the chapter today. So we have been talking about the factors of production which are equally there in agricultural sector too, right? So agriculture में भी वही factors of production है जो हमारे industry में है. So whenever we talk of factors of production, we talk about both the sectors, agricultural sector and industrial sector. I think I've made myself clear over this now. So factors of production agriculture में भी सबसे पहले land चाहिए होता है जिसपे हम cultivation करेंगे. Secondly, we would have labor who are going to sow the seeds, then take care of the crops, and then they are going to harvest. उसके लिए labor की जरूरत होती है, तो labor भी है. और finally the third factor which we are discussing is physical capital. Physical capital में fixed capital और working capital. Fixed capital होगी जो एक permanent चीज चाहिए होती है हमें काम करने के लिए. सब फिक्स्ड कैपिटल में आ गई हमारी टूल्स एंड मशीनरी और रॉ मटेरियल. फिक्स्ड कैपिटल में टूल्स, मशीनरी आ गई, और वर्किंग कैपिटल में आ गई हमारे रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. टूल्स, मशीनरी एंड मनी इन हैंड. तो फिक्स्ड कैपिटल में आपको समझ आ गया. फिजिकल कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल समझ आ गया होगा. जो भी टूल्स, मशीनरी जो परमानेंटली या लॉन्ग टर्म के लिए हम लेते हैं वो फिक्स्ड कैपिटल में आता है. वर्किंग कैपिटल मींस डे टू डे जो चीजें चाहिए होती है, जैसे रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल एक बार फैक्ट्री में ये नहीं है कि हम ले आए तो कई सालों तक सेम रॉ मटेरियल चलेगा. नो, we need to change the, जैसे ही रॉ मटेरियल खत्म होगा हमें नया रॉ मटेरियल चाहिए होगा. रॉ मटेरियल साथ साथ में कंज्यूम होता रहता है, ठीक है. और उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए दूसरी वर्किंग कैपिटल दो है, एक रॉ मटेरियल, दूसरा मनी इन हैंड, पैसे चाहिए होते हैं हमें. रोज के रोज जो खर्चे होते हैं फैक्ट्री में, ज्यादातर खर्चे होते हैं रॉ मटेरियल खरीदने के, ठीक है. लेबरर्स को सैलरी देने के पैसे किस लिए चाहिए हमें रोज के रोज, ठीक है. मशीनरी एक बार खरीद ली तो उसके रोज के रोज पैसे नहीं चाहिए. लैंड एक बार खरीद लिया उसके लिए वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए. बिल्डिंग एक बार बना ली उसके लिए वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए. तो वर्किंग कैपिटल किस लिए चाहिए होता है, जो डे टू डे खर्चे होते हैं हमारे, जैसे कि लेबरर्स को वेजेस देने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है. रॉ मटेरियल खरीदने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है. काम करते करते कुछ मेंटेनेंस के लिए जो चार्जेस लगते हैं उसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है. सपोज मशीनरी का ब्रेक डाउन हो गया या कुछ ठीक करवाना है, कुछ मशीनरी जो है वो खराब हो गई, उसमें तेल डलवाना है, जो भी करना है डे टू डे के जो खर्चे हैं उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल. तो दो तरह के फिजिकल कैपिटल होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल हो गया टूल्स, मशीनरी एंड बिल्डिंग, और वर्किंग कैपिटल सेकंड जो है हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया आपका रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, ठीक है. सो finally it is human capital. The fourth type of factors of production is human capital. Human capital क्या होता है? Human capital होता है जो लोग पैसे खर्च रहे हैं ये सब कुछ इकट्ठा करने के लिए, ठीक है. The one who have knowledge and the who owns the enterprise,
ठीक है, जो ओनर है वो, लेबर नहीं, ठीक है। लेबर हमने पहले डिस्कस कर ली, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेबर एंड ह्यूमन कैपिटल। लेबर हो गई जो कि हमने हायर किया है काम करने के लिए, और ह्यूमन कैपिटल होगी जिसके पास दिमाग है, जिसके पास एक एक्सपर्टीज है, जिसके पास जिसने हर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा किया है, जिसके पास एंटरप्राइज है, पूरा एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मींस द होल थिंग, दिस वन, ये पहले वाली तीनों जो चीजें हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। फॉर दिस द मनी इज गिवन बाय द ह्यूमन कैपिटल, द ब्रेन बिहाइंड दिस इज फॉर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जो जिसने फैक्ट्री लगाई है, जो फैक्ट्री चला रहा है, या जिसके खेत हैं, समझ आ गया, जिसके खेत हैं, वो बंदा हो गया जिस ह्यूमन कैपिटल में आता है, ठीक है। आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दिस नाउ। उसके बाद हमने और भी बड़ा कुछ चीजें डिस्कस की, जैसे फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग के लिए लैंड फिक्स्ड है, फिक्स्ड लैंड होता है, और फिक्स्ड लैंड का मतलब है कि लैंड जो है वो उसको जितना कल्टीवेशन में यूज हो रहा है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि लैंड में जितनी भी क्रॉप उग रहे हैं उसकी यील्ड बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो आर देयर वेज थ्रू व्हिच वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, उतनी जगह से ही कितना ज्यादा उगाया जा सकता है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमने डिस्कस कर लिए हैं वो चीजें भी। सबसे पहले क्रॉप्स जो हैं वो एक सीजन में नहीं लगाने, वो मल्टीपल सीजन्स में लगाने हैं। खरीफ, राबी, ज़ैद, जितने भी अलग अलग तरह के क्रॉप्स लगा सकते हैं पूरे साल में, वो लगा सकते हैं, लगानी चाहिए हमें, ठीक है। शुगर केन जैसे कई क्रॉप्स हैं जो सिर्फ पूरे साल में एक बार उगते हैं, तो वो चेंज करके नहीं लगा सकते हैं। लेकिन देयर आर मेनी क्रॉप्स लाइक व्हीट, ज्वार, बाजरा, राइस, ये सारे वो सीजनल क्रॉप्स होते हैं, 3-4 महीने में बढ़ जाते हैं, ठीक है। 3-4 महीने के बाद हम दूसरे क्रॉप्स लगा सकते हैं, फिर दूसरे लगा सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग, so multiple cropping it can be the first thing which can be used for getting more yield from the same land. उसके बाद हम लोग बेटर टेक्निक्स यूज करते हैं, बेटर एग्रीकल्चर टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की थी, जिसमें बेटर जो लोगों को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रोवाइड किया गया था अच्छे फर्टिलाइजर्स, अच्छे सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी HYV, वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड्स होते हैं, जिससे कि पहले जो एक पौधे से सपोज 10 दाने निकलते थे वीट के, वो एक पौधे से फिर 50 दाने वीट के निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उतनी सी जगह से ही जो प्रोडक्शन है वो 5 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। उतने ही लैंड से प्रोडक्शन जो है वो 5 गुना बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है, इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटीज देना, कैनाल्स, ट्यूबवेल्स लगवा के देना, तो इससे क्या होगा कि सेम लैंड से प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये हमने इतना शायद पिछली बार कर लिया है ना। विल द लैंड सस्टेन? नाउ द क्वेश्चन इज कि इतना ज्यादा जब हम लैंड के ऊपर बोझ डालेंगे तो लैंड जो है वो इतना ज्यादा सह पाएगा, ठीक है, समझ आया? Will the land sustain? So it has already been told that the green revolution, which is already associated with loss of fertility of the soil. इतना जब हम एक ही लैंड से इतने क्रॉप्स उगा रहे हैं, इतना उस पे प्रेशर डाल रहे हैं लैंड के ऊपर, तो जितने न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के वो खत्म होते जा रहे हैं। एक ही तरह के, मतलब एक ही सीजन में 3-3, 4-4 तरह के क्रॉप्स लगा रहे हैं, और लगाते जा रहे हैं, लैंड को ब्रीथ करने का टाइम नहीं दे रहे हैं। ब्रीथ करने का मतलब अपने न्यूट्रिएंट्स को रीगेन करने का टाइम नहीं दे रहे हैं। तो लैंड क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे लैंड जो है वो इट इज लूजिंग इट्स फर्टिलिटी। तो लैंड अगर फर्टिलिटी लूज करेगा तो धीरे धीरे it will become infertile. Yes, Krish, that's the right word. That is what I was about to say. The land will become infertile. जब infertile हो जाएगा तो क्रॉप्स लगेंगे ही नहीं। एक तरफ हम सोच रहे हैं कि जितना हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड है उससे हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स लें, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लैंड के ऊपर क्रॉप्स उगा के उसकी फर्टिलिटी खत्म कर देंगे तो क्रॉप्स उगेंगे ही नहीं। तो जितना वो पहले उगा रहा था नेचुरली,
उतना भी हमें नहीं देगा, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर ऑल्सो फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स विल लोअर द वाटर टेबल, वाटर टेबल लोअर कर देगा। वाटर टेबल होता है द लेवल एट विच वाटर इज फाउंड इनसाइड द अर्थ, ठीक है। अगर हम लैंड को यूज करते रहेंगे, सॉरी ग्राउंड वाटर को यूज करते रहेंगे, तो वाटर टेबल श्रिंक होता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे इतना नीचे चले जाएगा कि उसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद ये सारी जब हम एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जब हम यूज करते हैं, तो उससे क्या होगा कि लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है, लैंड की लाइफ खत्म हो जाती है। तो हमें लैंड को ब्रीथ करने के लिए टाइम देना चाहिए, ठीक है। कुछ साल अगर 2-3 साल क्रॉप्स उगाए हैं, तो बीच में 1 साल 2 साल लैंड को छोड़ देना चाहिए, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सके, ठीक है। दूसरा, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की जगह हमें मैन्योर्स यूज करना चाहिए। एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट अ मैन्योर इज? व्हाट इज अ मैन्योर? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, नेचुरल वी कैन से, जो केमिकल्स नहीं होते उसमें। वेरी गुड क्रिश, जिसमें केमिकल्स नहीं होते, ठीक है, वो नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो नेचुरल तरीके से एनिमल डंग, प्लांट्स, वेरी गुड वंशिका। हम क्या करते हैं कि प्लांट्स जितना भी हमारे ऑर्गेनिक और डिस्पोजेबल जो नेचुरल डिस्पोजेबल चीजें होती है ना, जो छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके, जैसे, हाँ वेरी गुड, पील्स, छिलके हो गए सब्जियों के, अंडे के छिलके हो गए, घर से निकले हुए जो खाने की चीजें होती है ना, जो बच जाती हैं, अगर हम उनको, वो सारी चीजें फिर वो क्या करते हैं, खाने की चीजें तो नहीं इकट्ठी करते, ज्यादातर मैन्योर इज मेड थ्रू काउ डंग, काउ डंग से बनता है ज्यादातर मैन्योर, ठीक है। बीच में वो प्लांट्स, हस्क और प्लांट्स के लीव्स, जो काटे प्लांट पड़े होते हैं, टूटे पत्ते, ये सारी चीजें बीच में डाल देते हैं, रॉटन वेजिटेबल्स, वेरी गुड। तो वो सारी चीजें डाल के नेचुरल जो मैन्योर बनता है, उससे क्या होता है, यस, डिकम्पोज प्लांट्स, यस, इट्स नॉट डंग, डंग, DUNG, काउ डंग। तो काउ डंग वगैरह यूज करके, तो उसको क्या करते हैं, वो नेचुरल फर्टिलाइजर जो मैन्योर बनता है हमारा, दैट मैन्योर इज यूज्ड as fertilizer for the plants, and manure is something which is not going to harm the soil, ठीक है, neither the soil nor the crops and neither us। आपको पता है फाइनली जो इतने फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं प्लांट्स में, वो ह्यूमंस को भी बहुत हार्म करते हैं, ठीक है। तो इसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, जहां पे फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज होते हैं, नेचुरल मैन्योर यूज होता है। तो ये सारी चीजें करके हम जरा लैंड को सस्टेन भी तो करवाना है, यही नहीं कि सिर्फ एक ही बार में यूज कर लें सारे, तो एक ही बार में सारा लैंड यूज कर लेंगे तो बेचारा लैंड कुछ भी क्रॉप नहीं होगा, बैरन हो जाएगा। अगर लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, इट विल बिकम अ बैरन लैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बैरन लैंड। हिंदी में उसे कहते हैं क्या हो जाता है लैंड? बंजर। यस, बंजर, बंजर, राइट क्रिश, थैंक यू वंश। बंजर, बंजर हो जाता है जो हमारा बैरन लैंड होता है। तो बंजर जमीन पे फिर कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमारी ड्यूटी है, जो फार्मर्स की ड्यूटी है, कि लैंड पे ज्यादा प्रेशर ना डालें और कुछ ऐसे काम करें जिससे कि लैंड की फर्टिलिटी रीगेन भी होती रहे, ठीक है। उसके बाद, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स इन पालमपुर? पालमपुर में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है एक फार्मर का। पहले तो बताया हुआ है कि जो 450 फैमिलीज हैं, उसमें से 150 फैमिलीज जो हैं वो लैंडलेस हैं। लैंडलेस फैमिलीज, यू अंडरस्टैंड, जिनके पास लैंड नहीं है। देयर आर 450 फैमिलीज लिविंग इन पालमपुर, फ्रॉम व्हिच 150 फैमिलीज आर लैंडलेस। लैंडलेस फैमिलीज क्या करती हैं, वो दूसरों, या तो वो कोई और काम करेंगी, ठीक है, या वो दूसरों के फार्म्स में जाके लेबरर्स का काम करती है, ठीक है, या वो शेयर क्रॉपिंग भी करते हैं।
So out of 450 families, 150 families are landless. उनके पास लैंड नहीं है, ठीक है. Of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plots. बच गए 300. 300 में से 240 families जो हैं, they own only small plots of lands. That is around 2 hectares. सबसे पहले बेटा जान लीजिए 1 hectare is equal to 100 meter square. 1 hectare is equal to 100 meter square. ठीक है. हेक्टेयर में लैंड जो होता है वो नापा जाता है. The measurement of land is taken through taken by which SI unit. SI unit कहते हैं ना इसको. तो लैंड की जो कल्टिवेटेड लैंड होता है उसको हम हेक्टेयर में नापते हैं. 1 hectare is equal to 100 मीटर स्क्वायर. 100 मीटर स्क्वायर का 1 हेक्टेयर होता है. तो ज्यादातर फैमिलीज के पास 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ही है, उससे ज्यादा लैंड नहीं है, राइट. उसके बाद द नेक्स्ट इज दैट एंड कल्टिवेटिंग सच स्मॉल लैंड्स डज नॉट ब्रिंग मच ऑफ इनकम टू द फार्मर्स. इतने छोटे छोटे जब प्लॉट्स को कल्टिवेट करेंगे तो उससे कुछ खास इनकम तो कमा नहीं पाएंगे वो लोग. देयर आर ओनली 60 सच फैमिलीज दैट ओन बिग प्लॉट्स ऑफ लैंड. ठीक है. सिर्फ 450 फैमिली में से सिर्फ 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा लैंड है. बाकी सबके पास छोटे पीसेस हैं लैंड के. ठीक है. अब एक फार्मर का एग्जाम्पल दिया हुआ है गोविंद. There in 1960 Gobind was a farmer with 2.25 who have 11 hectare of land. Yes, they borrow land from other farmers and they have 11 hectare of land. Okay. अच्छा, तो क्या है कि गोविंद was a farmer there in 1960. 1960 में पालमपुर में एक फार्मर रह रहा था जिसका नाम था गोविंद. गोविंद was having 2. अब ध्यान से देखते रहिए बेटा. ये सपोज गोविंद के लैंड का पीस है एंड दिस लैंड पीस इज 2.25 हेक्टेयर. 2.25 हेक्टेयर का ये लैंड है गोविंद के पास. ठीक है. अब गोविंद के 3 बेटे थे. अब आपको तो पता है कि जो इनहेरिट होता है, डू यू नो अबाउट इनहेरिटेंस? जो अपने फादर ग्रैंडफादर से आपको जो प्रॉपर्टी मिलती है जो आप इनहेरिट करते हो. ठीक है. तो इनहेरिट किया. गोविंद के जो 3 बेटे थे उन्होंने गोविंद से लैंड इनहेरिट किया. Each one now has a land of 0.75 hectare. 2.25 was divided into 3 parts. Each part is now 0.75 hectare. ठीक है. गोविंद की वाइफ और गोविंद के 3 बच्चे, 5 लोगों के पास 2.25 हेक्टेयर लैंड था. ठीक है. अब जब फैमिली को इनहेरिट हुआ, आगे जब गोविंद की डेथ हुई तो गोविंद के बेटों की शादी हुई और उन्होंने सबने अपना अपना हिस्सा ले लिया. 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया गोविंद का लैंड. देखो ये राइट टू इनहेरिटेंस से हमारी फार्मिंग में कितनी प्रॉब्लम आई है. ठीक है. 3 डिवाइड हो गए, 3 हिस्से हो गए लैंड के. अब हर उसके बेटे की जो फैमिली होगी 4 या 5 लोगों की, उनके पास सिर्फ 0.75 हेक्टेयर ऑफ लैंड आ रहा है. ठीक है. तो पहले 5 लोगों के पास 2.25 हेक्टेयर लैंड था. अब 15 लोगों के पास सिर्फ 0.75 हेक्टेयर ऑफ लैंड आ रहा है. अब सपोज इनके आगे बच्चे होंगे, वो और डिवाइड कर लेंगे इस लैंड को. तो लैंड जो लैंड है वो छोटा होता जा रहा है. लैंड एक्चुअली छोटा नहीं होता जा रहा है, लैंड उतना ही है लेकिन उसकी डिविजन्स बड़ी ज्यादा होती जा रही है. ठीक है. और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. एक लैंड
पूरा का पूरा, जिसपे एक टाइम पे 5 लोग डिपेंडेंट थे, उस पे 20 साल के बाद 5, 5, 10, 5, 15 लोग डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, 40 साल के बाद उस पे और उनकी फैमिलीज आ गई ना। ठीक है, और डिपेंडेंसी होगी उस लैंड पे। 40 के बाद पहले 5 लोग डिपेंडेंट थे, 15 हो गए, 15 के बाद 40 लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए, 20 साल के बाद 40 के बाद 80 लोग, इसी लैंड पे 80 लोग डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि लैंड होल्डिंग्स जो है वो कम होती जा रही है। दीज आर कॉल्ड एज लैंड होल्डिंग। किसके पास कितना लैंड है, लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग्स छोटी होती जा रही है। ठीक है, सो इसीलिए हमें बोर्ड इज नॉट क्लियर। Okay now? Is it okay now? Any improvement? Okay, Vanchika. So let's move further. तो लैंड होल्डिंग्स के साइज छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, लैंड होल्डिंग्स के साइज जब छोटे हो रहे हैं, Gursimran, my voice is not clear. Is my voice clear to everyone else, or is it Gursimran's network problem or my network problem? Please make it clear to me. जल्दी बताइए। Thank you so much, Vanch and Vanchika. So my voice is clear. Gursimran, there might be a problem in. Thank you, Anushka. Thank you, Akshay. So, Gursimran, there might be a problem in your network somewhere. तभी मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा कि कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है फैमिलीज में। ठीक है, पुअर लोगों के पास कितना लैंड है और रिच लोगों के पास कितना लैंड है, और फिर कैसे लैंड डिवाइड होता जा रहा है। तभी डिपेंडेंसी लैंड पे बढ़ती जा रही है। जहां पर पहले एक लैंड 5 लोगों को सपोर्ट करता था, वही लैंड आज 500 लोगों को सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए हमें उस लैंड से जो यील्ड है वो ज्यादा चाहिए। समझ रहे हो, इसीलिए उस लैंड से जो आउटपुट है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोडक्शन है उस लैंड की, वो हमें अब ज्यादा उससे उसी लैंड से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं ताकि लैंड प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर, दैट इज कॉल्ड एज यील्ड पर हेक्टेयर, YIELD, यील्ड पर हेक्टेयर जो है वो इंक्रीज हो सके। यील्ड पर हेक्टेयर हमें ज्यादा चाहिए, it should increase, right? And that is why we are adopting the modern techniques of farming, and green revolution was the main outcome of this problem. इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन का सोचा था हमारी गवर्नमेंट ने और लाया था उसे, और नई टेक्निक्स लाई थी। ओके, नाउ और लेबर का तो हमें पता चल गया है। लेबर कहाँ से आती होगी इनके पास? जिनके पास लैंड है उसको कल्टीवेट करने के लिए, जैसे जिनके पास लार्ज पीसेस ऑफ लैंड हैं, जो रिच फार्मर्स हैं, बिग फार्मर्स हैं, फ्रॉम वेयर दे वुड गेट द लेबर? दे वुड गेट द लेबर फ्रॉम द फैमिलीज हु आर लैंडलेस families. All right, now okay, so the labor is provided by the families which are landless. उससे आती हैं small farmers along with their families cultivate their own fields, and they provide labor required for farming themselves only. They are the laborer on their farmers, but medium and large farmer hire laborers to work in their fields, right? अब laborers की क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? The laborers which are hired for
hired by the big farmers to take care of their crops, to sow the seeds and then to take care of their crops and then to harvest the crops. उसके लिए लेबरर्स की क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेबरर्स की ये होती है लैंड पे, यस, दे गेट वेरी लो वेजेस, और कई बार उनको पैसे मिलते भी नहीं है, पैसे कम भी मिलते हैं और कई बार पैसे नहीं मिलते हैं। तो फार्मर्स उनको कहते हैं कि जो उगाओगे उसमें से कुछ थोड़ा सा 1-2 बोरी जो है हम आपको गेहूं का दे देंगे, ठीक है। तो कई बार कैश उनको मिलती भी नहीं है, दे गेट काइंड का मतलब होता है गुड्स मिलते हैं उनको, इन बार्टर सिस्टम की तरह वो करना शुरू कर देते हैं काम। कई बार लेबर, ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम होगी लो वेजेस, सेकंड प्रॉब्लम होगी समटाइम्स द मनी इज पेड इन नॉट इन कैश बट इन काइंड, ठीक है, एंड that also is not a proper thing, they are not properly paid with kind. The third problem is that the labor is seasonal, वैल्यू ऑफ वर्क जो है उनको कम मिलता है। और थर्ड प्रॉब्लम इज कि सीजनल होता है, ठीक है। और कई बार लेबर जो होती है वो सीजनल होती है, ठीक है। सीजनल लेबर का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए, जैसे लोग सिर्फ सोचते हैं कि हम सिर्फ एक बार क्रॉप को सो कर दें, सीड्स को सो कर दें और छोटे छोटे सैपलिंग्स जब निकल आएंगे उसके बाद वो लेबर को कहते हैं आप छुट्टी कर लो, ठीक है। अब जब हार्वेस्ट करना होगा फिर आना, ठीक है। और जो क्रॉप को इरिगेट करना है वो खुद ही कर देते हैं, पानी देना है ट्यूबवेल चला दिया, पानी अपने आप दे दिया जाएगा। तो वो जो लेबर होती है वो सीजनल हो जाती है। सीजनल लेबर होने से क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि पूरे साल उन लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है, दे आर नॉट पेड फॉर द होल ईयर। सो दैट्स another problem. There is an example given in your book of Dala. Who is Dala? Dala is the name, D-A-L-A. Dala is a landless farm laborer who works on daily wages in Palampur. Vanshika, I'll explain the last point again. Last point था कि seasonal labor होती है। seasonal का मतलब है एक particular time पे लेबर को हायर किया जाता है, और क्या होता है कि बाद में जैसे जब क्रॉप को उगाने का टाइम है उस टाइम पे वो लेबर को हायर करेंगे, ठीक है, और फिर लेबर को छुट्टी कर देंगे। और दूसरा, जब वो क्रॉप को हार्वेस्ट करना होगा फिर लेबर को बुलाएंगे। तो बीच में 2-3-4 महीने के लिए लेबर बेचारी फ्री रहती है, it remains free, and thus they don't get proper or sufficient earnings for their, so they don't get sufficient earnings for their family. So this was the last point. So Dala, there is an example given in your book of Dala. This Dala is a landless laborer who works on daily wages in Palampur. He regularly goes to work. The minimum wages for a farm labor set by the government is ₹60 per day. गवर्नमेंट ने सेट किया है कि 60 रुपीज पर डे लेबर मिलनी चाहिए, फार्म को वेज मिलनी चाहिए, बट डाला गेट्स ओनली 35 to 40 रुपीज। तो सबसे बड़ी उसको लो वेजेस मिल रही हैं, जो गवर्नमेंट ने सेट किए वेजेस उससे कम मिल रहा है। बेटा ये जो फार्मर्स, ये जो लेबरर्स होते हैं ना, ये इनको अपने हक के बारे में भी नहीं पता होता, उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारे जो मालिक है वो जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ उससे कम पैसे दे रहे हैं। अगर पता भी हो तो वो डर के मारे बोलते ही नहीं है कि हमें कम पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जितने मिल रहे हैं उतने भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद there is heavy competition for work among the farm laborers, क्योंकि ज्यादातर वहां गरीब फैमिलीज हैं, 150 लैंडलेस फैमिलीज हैं जिनको लेबर करना है, काम करना है। तो आपस में बड़ा कंपटीशन है कि फार्म पे कौन काम करेगा, ठीक है। तो वो कम से कम पैसे में, अगर कोई कहता है कि मैं 40 रुपए में काम कर देता हूँ, तो शायद कोई दूसरा आगे कहे कि नहीं मालिक मैं 35 रुपए में काम कर दूंगा, ठीक है। तो उसका भी कंपटीशन है, ठीक है।
इसीलिए पीपल अग्री टू वर्क ऑन लोअर वेजेस। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स डाला और रामकली हु इज अनदर फार्म लेबरर, तो उन दोनों की आपस में बताया हुआ है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो मैंने आपको ज्यादातर प्रॉब्लम्स बीच में बता दी हैं। ठीक है, नाउ द कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग। हम ये सारी क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले हमने लैंड डिस्कस किया था कि लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, उसके बाद हमने लेबर का डिस्कस किया कि लेबर कहाँ से आती है और उनको कैसे वेजेस मिल रहे हैं। द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी आर डिस्कसिंग नाउ विच इज कैपिटल। ठीक है, द कैपिटल नीडेड, फिजिकल कैपिटल, वी आर टॉकिंग ऑफ फिजिकल कैपिटल हियर, नॉट ह्यूमन कैपिटल हियर। तो द कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग। सो पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे किस लिए चाहिए होते हैं? सबसे पहले मुझे ये बताओ, फार्मिंग में मैंने पहले बता दिया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रीज के लिए तो बड़े आसानी, सेविंग्स। वंश गरीब लोगों के पास सेविंग्स नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले पैसे किसके लिए चाहिए होते हैं? वंशिका हैज वेरी वेल सेड दैट मनी इज नीडेड फॉर बाइंग द सीड्स। सबसे पहले यस राइट वंश, ओके, बिग फार्मर्स के पास तो सेविंग्स होती हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर, मेरा क्वेश्चन था कैपिटल चाहिए किस लिए है। ठीक है, तो एज वंशिका इज राइटली सेड दैट इट इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। सीड्स खरीदने हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, उनको पैसे चाहिए होते हैं सीड्स खरीदने के लिए। ठीक है, मार्केट से अच्छे सीड्स लेंगे तभी अच्छी फसल होगी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ठीक है, हाई यील्डिंग, पहले बच्चे एक मिनट रुक जाओ, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि मनी चाहिए किस लिए, फिर हम देखेंगे कि कहाँ से आती है उनके पास। तो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स चाहिए, अच्छे सीड्स चाहिए, खरीदने हैं बाजार से, उसके लिए पैसे चाहिए। दूसरा, उनको पैसे चाहिए फर्टिलाइजर खरीदने के लिए। तीसरा, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, कोई कीड़ा लग गया है उसको इंसेक्टिसाइड छिड़कना है, पेस्टिसाइड छिड़कना है, उसके लिए पैसे चाहिए। ठीक है, और जब हार्वेस्ट करनी होती है तो उसके लिए सपोज उन्होंने कोई मशीन लानी है हार्वेस्ट करवाने के लिए, या कुछ ऐसी चीज लानी है जिससे वो हार्वेस्ट कर सके, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो बीच बीच में बहुत सारी वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है फार्मर को। ठीक है, कई बार फार्मर के पास प्लो नहीं होता है, प्लो खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं कि मेरा हल टूट गया है, मुझे नया हल लेना है, मुझे पैसे चाहिए। कई फार्मर सोचते हैं कि हमें ट्रैक्टर खरीद लेना चाहिए, हमारा खेत थोड़ा बड़ा है, हमें ट्रैक्टर खरीद लेना चाहिए, तो वो ट्रैक्टर मशीनरी खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए। ट्रैक्टर कम्स इन मशीनरी ओनली। ठीक है, हाँ, कई बार वो बाय कर लेते हैं ट्रैक्टर, कई बार रेंट करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं, पहली चीजें। ठीक है, उसके बाद अब मनी आती कहाँ से है? एज यू हैव यस क्रिश, दे टेक लोन्स। अब मनी आती कहाँ से? ज्यादातर रूरल हाउस होल्ड जो है वो, देर आर टू वेज ऑफ गेटिंग लोन्स, गेटिंग मनी। वन, they get money from informal sources, and second is they get money from the formal sources. money मतलब लोन, लोन लेते हैं, लोन मतलब क्रेडिट, उधार, उधार लेते हैं पैसे, दे बोरो मनी। ठीक है, जो फार्मर्स होते हैं दे बोरो मनी। कैपिटल कहाँ से आएगी? दे बोरो द कैपिटल। बोरो कहाँ से करेंगे? उधार कहाँ से लेंगे? क्रेडिट कहाँ से लेंगे? दो है, एक फॉर्मल सोर्सेज और एक इनफॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्सेज होते हैं हमारे गवर्नमेंट, जो हमारे बैंक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन बैंक से ज्यादातर फार्मर्स, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, वो तो बिल्कुल लोन नहीं ले सकते, क्योंकि बैंक से लोन लेने के लिए उनको कोलैटरल चाहिए। व्हाट इज अ कोलैटरल? कोलैटरल होता है सिक्योरिटी। ठीक है, वो कहते हैं ना, जब बैंक से लोन लेना होता है तो वो कहते हैं कि गिरवी क्या रखोगे। ठीक है, तो गिरवी रखने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है। अगर उनके पास छोटा बहुत लैंड भी है तो उसके अगर प्रॉपर कागज नहीं है उनके पास, तब भी वो लोन नहीं ले पाते। तो ज्यादातर जो पुअर फार्मर्स और लैंडलेस फार्मर्स होते हैं ना, वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं। इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं मनी लेंडर्स, जमींदार। ठीक है, साहूकार, जमींदार। ठीक है, बिग फार्मर्स, उनसे वो लोन्स लेते हैं। ठीक है, और उनसे जब लोन लेते हैं, मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स हैव टू बाय मनी, have to borrow money to arrange for the capital. They borrow from large farmers or
विलेज मनी लेंडर, साहूकार जो होते हैं। आपने बड़ी सारी, आजकल तो वैसी मूवीज नहीं आ रही हैं, लेकिन पुरानी मूवीज बड़ी आई थी जिसमें बताया गया था कि फार्मर्स की कितनी बुरी हालत होती है जो लोन नहीं चुका पाते हैं। मैं वैसे उम्मीद नहीं करती हूँ, लेकिन the only good movie I watched of Shah Rukh Khan was Swadesh. I know most of you would not have watched that movie, but it is a wonderful movie to watch. Swadesh, शाहरुख खान की स्वदेश मूवी आई थी, आज से काफी देर पहले आई थी, तो वेरी गुड वंश। तो आप जिन जिन बच्चों ने वो मूवी देखी है, उस मूवी में ये बहुत अच्छी जो इंडियन रूरल सिस्टम बताया है ना, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जब शाहरुख खान पैसे लेने जाता है उस फार्मर से, और उस फार्मर की आगे क्या कंडीशन होती है। ठीक है, वो लैंडलेस फार्मर था जो शाहरुख खान की लैंड को रेंट पे हर क्रॉप कल्टीवेट कर रहा था, और शाहरुख खान की जो केयर टेकर थी, जो उसकी केयर टेकर जो लेडी थी, वो लेडी कहती है कि बहुत देर से उसने पैसे नहीं दिए, किराया नहीं दिया है, या जो भी वो उनसे लेते थे कल्टीवेट करने रेंट पे जो दिया हुआ था लैंड। तो एक बड़ी अच्छी सिचुएशन बताई थी वहां पर, और बड़ी अच्छी तरह समझाया दिखाया गया था कि क्या हमारे इंडियन फार्मर्स का क्या स्टेटस है, क्या उनका हाल है हमारे इंडिया में। ठीक है, एंड इट इज अ ट्रू सिचुएशन। ठीक है, तो जो मनी लेंडर से लोन लेना है और जो गरीब किसान उनसे लोन लेते हैं, उनकी हालत बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी होती है। ठीक है, और आपके इस पूरे चैप्टर में बताया गया है कि कैसे द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो इसमें एग्जांपल दी हुई है सविता, स्मॉल फार्मर। तो शी प्लान्स टू कल्टीवेट वीट ऑन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, और उसके लिए उसे सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए। ठीक है, और उसके फार्म पूरी वर्किंग कैपिटल की टोटल कॉस्ट है 3,000 रुपए उसे चाहिए ये सारी चीजें अरेंज करने के लिए। तो उसको वो मनी तेजपाल सिंह, एक बिग फार्मर है, ज्यादा बड़ा फार्मर है, उससे वो बोरो करती है। तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24%। 3,000 पे वो 24% फॉर 4 months, कि अभी तुम 3,000 ले जाओ, उसके बाद 4 महीने के बाद उस पर 24% इंटरेस्ट के साथ वापस करना, मतलब 3,000 प्लस 24% इंटरेस्ट। आई थिंक यू पीपल आर गुड इन मैथमेटिक्स, यू ऑल कैन मेक आउट 3,000 पे 24% उसका इंटरेस्ट कितना बन जाएगा। 1,000 पे 24% बन गया 240 रुपए। ठीक है, तो उसको 720, आई थिंक 720 रुपए इंटरेस्ट बनेगा। 3,000 के साथ 720 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, एंड 24% इज क्वाइट एन अमाउंट, बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है वो। ठीक है, सो इट इज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब उसको वो जिस Savita also has promised to work on his field for 35 rupees. अब वो तेजपाल सिंह उसको एक तो इंटरेस्ट ले रहा है इतना ज्यादा, दूसरा उसे ये भी मनाया है भी तुम जब अपना क्रॉप उगा लोगी तुम मेरे फील्ड पे भी काम करोगी, और कितने पैसे पे 35 रुपीज पर डे। गवर्नमेंट ने 60 रुपीज पर डे डिसाइड किया हुआ है, और वहां पर भी सविता को नुकसान हो रहा है 25 रुपीज का, ऑलमोस्ट आधे पैसे तेजपाल सिंह वहां लेबर भी खा रहा है उसकी। तो इतनी बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं जो बिग फार्मर्स होते हैं, वो छोटे लैंडलेस फार्मर्स को इतनी बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सिचुएशन समझ ली कि स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस फार्मर्स की सिचुएशन काफी खराब है। रादर बिग फार्मर्स जो होते हैं उनके पास अपनी सेविंग्स होती है, ठीक है, और वहां से वो अपने जो वर्किंग कैपिटल है वो ले लेते हैं। ठीक है, and finally I'll take 5 more minutes. Should I complete the chapter, or do you want the last topic to be okay? हम इसका लास्ट टॉपिक जो सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, और can I take 5 more minutes? Okay, I'll take. I don't want to extend this economics chapter to next week. It will only take 5 more minutes. Let us complete. ठीक है, और जिनका एग्जाम है उनको भी लास्ट तक समझ आ जाएगा। तो सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब
जैसे व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट, तो जितनी भी एक्स्ट्रा व्हीट है उसको बेचा जाएगा, दूसरे मार्केट्स में जाके बेचा जाएगा, ठीक है। कुछ जब भी जितना भी स्मॉल फार्मर्स या बिग फार्मर्स जितना भी प्रोड्यूस करते हैं अपने अपने लैंड पे, उसमें से कुछ पार्ट रख लेते हैं अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, और जितना उनको लगता है कि पूरे साल में सपोज हमारी फैमिली 50 किलो व्हीट खाएगी, ठीक है, 50 किलो व्हीट वो अपने पास रख लेते हैं, और जितनी भी एक्स्ट्रा व्हीट है उसे कहते हैं सरप्लस। सरप्लस मींस एक्स्ट्रा, जितना भी आ रहा है उनके पास, वो सारा दे गो एंड सेल इट इन द मार्केट, ठीक है। तो सरप्लस किन के पास होगा? Do you think the landless laborers who are cultivating on other people's field, or the small farmers would have surplus surplus grains to be sold, surplus yield to be sold in the market? No, only medium to large farmers have got surplus yield, surplus produce to be sold in the markets, ठीक है। बाकी जो स्मॉल और छोटे जितने भी फार्मर्स हैं उनको सेल्फ कंजम्पशन के लिए सिर्फ वो पूरे साल खेती करते हैं, सिर्फ इतनी खेती उनसे हो पाती है कि वो सिर्फ खुद खा पाए, ठीक है। सिर्फ मीडियम टू लार्ज फार्मर्स जो होते हैं ना, वही व्हीट सरप्लस जो है वो बेचते हैं मार्केट में, ठीक है। द ट्रेडर्स एट मार्केट बाय व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू द शॉपकीपर्स। तो Tejpal Singh is a large farmer, has a surplus of 350 quintals of wheat for all lands, from all his lands, and he sells the surplus to Raiganj market. Raiganj हमने पहले ही पढ़ा है, Raiganj is a big village there. वहां उसकी मार्केट में जाके तेजपाल सिंह अपनी 350 quintals of wheat he sell over there, ठीक है। Now what does Tejpal do with his earnings? जितनी 300-350 क्विंटल उसने wheat जो है वो बेच दी है, 1 क्विंटल इज 100 किलोस, तो 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट उसने बेची है, उससे जो पैसे मिले हैं, अब तेजपाल सिंह उस पैसे को वर्किंग कैपिटल यूज करेगा नेक्स्ट टाइम जो प्रोड्यूस है उसके लिए, ठीक है। कुछ पैसे वो उधार देगा उसमें से स्मॉल फार्मर्स को, जैसे सविता जैसे फार्मर्स को, कुछ अपनी सेविंग्स करेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ he plans for all his money, ठीक है। उसके बाद नॉन फार्म एक्टिविटीज। अभी तक हमने पूरी फार्म एक्टिविटी समझ ली, पूरी पालमपुर की लैंड क्या होता है, लैंड कहाँ से आता है, किस किस तरह की डिवीजन होती है लैंड में, उसके बाद लेबर कहाँ से आती है, और कैपिटल कैसे अरेंज होती है, वर्किंग कैपिटल कैसे अरेंज होती है। नाउ नॉन फार्म एक्टिविटीज, हमने जैसा कि पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था दैट पालमपुर इज अ विलेज विच हैज गॉट 75% people involved in farming, but the rest 25% people are also doing the non-farm activities, non-agricultural activities. What are those activities? The first and the most common activity is dairy, दूध बेचना, गाय भैंसे रखना, दूध बेचना, बड़ी कॉमन चीज है, इसमें ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। Dairy is a common activity. The various kinds of fodder which are required, fodder होता है food for animals, required there is grass and jawar and bajra, ठीक है। हमने इसके बारे में पढ़ा था, जवार और बाजरा are grown as खरीफ crops, ठीक है। उसके बाद मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, a nearby village. Two traders from Shahpur also have set up collection cum chilling centers at Raiganj, from where milk is transported to other places, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज टाइप का है उनके पास, जिससे वो दूध लेते हैं, रायगंज वाले पालमपुर से दूध लेते हैं और फिर आगे भी बेचते हैं, ठीक है, शाहपुर जैसे टाउन में, ठीक है। There is small scale manufacturing also there in Palampur, ठीक है, which less than 50 people are engaged in manufacturing activities also in Palampur. तो उसमें बड़े सिंपल से प्रोडक्शन, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, ठीक है, बड़ी सिंपल स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन होती है कुछ छोटी छोटी चीजों की, ठीक है। उसके बाद शॉपकीपर्स हैं पालमपुर में जो छोटी छोटी डे टू डे यूटिलिटीज का सामान बेचते हैं, ठीक है। और फाइन जैसे नोटबुक, टूथपेस्ट, पेन, सोप्स, ये सारी और छोटी छोटी दालें जो डे टू डे हम घरों में यूज करते हैं, वो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं वहां पे। उसके बाद
ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा डेवलपिंग वहां पे पालमपुर में आजकल ट्रांसपोर्ट चल रहा है, वो ऐसा लिखा गया आजकल, मींस which is there in written in your book, कि ट्रांसपोर्ट जो है इट इज अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर इन पालमपुर। क्यों? क्योंकि वेल डेवलप्ड रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशन जब भी उनको कुछ लेना है, साथ की सिटी में जाना है, साथ के शाहपुर में जाना है, रायगंज में जाना है, क्रॉप बेचने के लिए जाना है, कुछ अच्छी चीजें लेने, पढ़ने के लिए कॉलेज में या कहीं जाना है, तो ट्रांसपोर्ट इज there are rickshaw walas, tonga walas, jeep, tractor, truck drivers, and people driving the traditional bullock cart and buggy on the roads. So this is all in the chapter. नॉन फार्म एक्टिविटीज में डेयरी फार्मिंग आ गई, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आ गई, शॉपकीपिंग आ गई और ट्रांसपोर्टेशन, 4 एक्टिविटीज है नॉन फार्म एक्टिविटीज। अब मुझे बताइए, आपको ये चैप्टर समझ आ गया सबको? Have you all understood this chapter well? This is a very easy chapter. Mainly इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने देखना है और कैसे उसको लिंक किया हुआ है पालमपुर के साथ, ठीक है? तो इस पूरे चैप्टर से हमें पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज के थ्रू हमें बताया कि हमारे विलेजेस में कैसे काम चलता है, इकोनॉमिक लाइफ हमारे विलेजेस में कैसे चलती है, ठीक है? तो दिस इज अ क्लियर पिक्चर ऑफ एनी विलेज ऑफ इंडिया, राइट? सो I'm going to end this now. I'll arrange for the notes and I'm going to send you the notes for this chapter and the previously done political science chapter. And next week, we'll be starting up with histories, French Revolution, right? Should we start up with histories, French Revolution now? Okay. Okay, beta, you can all leave now. I'm going to end the meeting. You can all leave. Thank you, beta. Thank you.